اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے تمام سنی بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیوبندی وہابی اور ایک نیا فرقہ بنا ہے جو ابھی 10 سال پہلے بنا ہے۔ 1400 سال کے بعد اب 10 سال پہلے ان کے پاس ہدایت آئی ہے اور سمجھ آئی ہے، اور اسلام کو انہی نے سمجھا ہے۔ دیوبندی وہابی تو چلو 100 150 سال پرانے ہیں، لیکن یہ جو 10 سال پہلے ایک فرقہ بنا ہے انجینئر مرزا کا، اسٹوڈنٹ جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں انجینئر مرزا کے، یہ ابھی 10 سال پہلے بنا ہے، تو ان کے پاس 1400 سال کے بعد اب ہدایت آئی ہے۔ تو اب یہ کیا کرتے ہیں، یہ 10 سال پہلے سے اٹھے ہیں اور ہم سے سوال کرنے لگتے ہیں کہ یہ بتاؤ جو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے ہو، ولی اللہ سے مانگتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو الحمدللہ ہم تو 1400 سال سے صحابہ کرام سے لے کر بزرگان دین سے لے کر جو سب مانگتے چلے آئے ہیں، ہم بھی مانگ رہے ہیں۔ تو جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ اچھا تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو کہ نہیں مانگنا چاہیے، جب ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ تم سوال ہی کیوں کر رہے ہو کہ نہیں مانگنا چاہیے، یہ کیوں کر رہے ہو تم، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ نہ ہی تو یہ مناظر ہیں، نہ ہی مناظرہ کرتے ہیں، اور نہ ہی کسی سوال کے جواب کو دے پاتے ہیں، صرف اپنے دماغ سے چلتے ہیں اور سوال کرنے لگتے ہیں۔ تو ان کی جہالت اور ان کی اصلیت آپ اس ریکارڈنگ میں سن سکتے ہیں۔ دیوبندی اور وہابیوں سے بچنا ہی ہے، اور ساتھ میں یہ جو ابھی 10 سال پہلے جنہیں ہدایت ملی ہے انجینئر مرزا کے اسٹوڈنٹ، ان سے تو بہت بچنا ہے، کیونکہ یہ تو پکے جاہل ہوتے ہیں۔ پکے جاہل اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان میں کوئی عالم نہیں ہوتا۔ دیوبندی وہابیوں میں عالم بھی مل جاتے ہیں، حالانکہ ان کا وہ علم نفع بخش نہیں ہوتا، لیکن ان میں تو عالم تک نہیں ملتے، اور یہ سوال کرنے آ جاتے ہیں کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں مانگتے ہو، بزرگوں سے کیوں مانگتے ہو۔ جب ہم ان سے یہی پوچھ لیتے ہیں کہ چلو ہم مانگتے ہیں، نہیں مانگنا چاہیے، تم کیوں سوال کر رہے ہو؟ یہ کہاں لکھا، تم نے دیکھا قرآن شریف کی کون سی آیت میں ایسا آ گیا کہ نہیں مانگنا چاہیے؟ یہ بتا دو خالی۔ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سوال کرنے آ جاتے ہیں، انہیں شرم بھی نہیں آتی، غیرت بھی نہیں لگتی۔ تو آپ اس کو سنیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اور چینل کو سبسکرائب کریے، تاکہ لوگوں کو بھی ان کی اصلیت پتہ چل سکے۔ اور ہاں، ایک اصول اور بھی بنائے گھوم رہے ہیں وہ اصول یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے جیسے اپنی ماں سے مانگ لیا، جیسے کہ یہ کہتے ہیں تم نے بزرگوں سے مانگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگا، تو تم نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بنا لیا۔ وہ تو ایسی ہی بات ہو گئی جیسے ان جاہلوں کے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کسی نے اگر اپنی ماں سے پیسے مانگ لیے تو انہوں نے کیا اپنی ماں کو اپنے باپ سے بڑا کر دیا؟ اور ٹھیک اسی ترکیب سے اگر کسی نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ لیا تو کیا انہوں نے اللہ سے بڑا کر دیا انہیں؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ایسے لوگ ہیں، ایسی باتیں لے کر کے آتے ہیں۔ تم دونوں بھی سائل اما ٹھیک ہے، میں میوٹ کر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے سہران بھائی، آپ لوگ بات کریں۔ ہماری بات ہوگی انشاءاللہ، وہ اصول و شرائط سے اگر کے بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ کوئی اصول شرائط سے نہیں ہوگا، تمہارے اصولوں سے آج تک مسئلہ حل ہوا ہے؟ نہیں، تمہارے اصولوں سے آج تک مسئلہ حل ہوا ہے؟ میرے اصول نہیں ہے یہ مناظرہ رشیدیہ میں یہ مناظرہ رشید، ہاں ارے سنو پہلے، بیچ میں میں اس لیے بول رہا ہوں کہ مناظرہ اصولوں سے سب بھاگے ہوئے، کوئی مناظرہ حاجی طے وہی نہیں، سب اپنی مرضی سے جیت گیا، یہ تھوڑی ہوتا ہے۔ آج تک کوئی وہابی جیت کر نہیں گیا، الحمدللہ بریلیوں سے۔ نہیں، میرا سیدھا اصول ہے، میرا بچ کے نہیں گیا۔ مجھے آپ یہ بتاؤ گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کا طریقے پہ چلے گا، اب اس کا مجھے وضاحت کر دو۔ چلو ہو گیا، ہمارا میوٹ کر لو۔ سب سے پہلی بات تو یہاں پر سوال جواب کا سیکشن نہیں رکھے والا ہے، شرعی عدالت کھول کے نہیں رکھی میں نے کہ یہاں سے سوال ہے ادھر سے جواب دو۔ میں مناظرہ بھی نہیں کر رہا آپ سے، میں آپ ارے یار
जब तुम्हारी औकात नहीं है मुनाजरा करने की तो अभी तुमने इतना बड़ा दावा क्यों किया? जवाब देने की नहीं है ना, मेरे सवालों का जवाब देने की नहीं है। कॉल पर आप क्यों बोला? बात करो ना, जवाब दो। मैंने कितना सवाल मुनाजरा तय करना है, मौजूद है मैंने पूछा है, सीधा तय कर लियो। ये कह दो मेरे पास जवाब नहीं है। ये क्या जहालत है तेरी? बस इतनी है हमारी जहालत। आप बताओ, आप में है कलमंदी? मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तुमने कहा है कि कॉल पर आ तो मुनाजरा हमारा औलिया अल्लाह से मदद मांगने मुनाजरे की बात नहीं कर रहा है। अरे मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह डरन मेरे भाई। हाँ सैरान भाई सुनो तो। हाँ अरे एलजी को बरेलवी करना तो एक का जवाब चाहिए, बस सारे एलजी बरेलवी दोनों को तैयार है, बताओ। जब तेरी औकात नहीं है बेटे, तू बड़े बड़े दावे क्यों कर रहा है बे? एक बात बता मुझे। वही तो मैं कह रहा हूँ, औकात नहीं होती है बात करने की, और बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमसे ये बात कर लो वो बात कर लो। मुनाजरे के बारे में तक पता नहीं है, सवाल करने आए सवाल जवाब करने के लिए। अमन भाई, पहली बात ये कि इनके घर में आलिम नहीं है, क्या सब जाहिल सवाल हमसे करने आए, बरेलियों से सवाल करने आए हैं? ये बताओ, क्या आपके अंदर सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं है? वो तो वक्त बताएगा। चल बात कर, सहरान भाई से बात कर तू, चल बात कर तू। अरे सहरान भाई देख सादत, अगर तेरे अंदर कुछ इल्मी सलाहियत है ना तो किसी एक मौजू पर तुझे इख्तियार देता हूँ मैं, कोई भी एक मौजू तू खुद चुन ले, उस मौजू पर हम उसूल और शराइत तय करके बात करेंगे। ये रोजमर्रा की जिंदगी में तू क्या कर, ये टाइम पास करना छोड़ दे। इधर से सवाल आ रहा है, इधर से सवाल कर, फिर वही सवाल पे टाइम पास करो 1.5 घंटा डाल, ये उससे कुछ हल नहीं निकलता। हल तब निकलेगा जब तेरे दलाइल सामने आएंगे, हमारे दलाइल सामने आएंगे, फिर दोनों में से किसके दलाइल का पल्ला भारी होगा, तब जाके हल निकलता है। इधर से तू कौन से सवाल उठा के लाता? साहबा है तेरे, अब मैं साहबा पे अगर तेरी पकड़ूंगा तू उसका भी जवाब नहीं दे पाएगा। बुखारी में मुतअद्दिद तादाद हदीस है, जूतों पहन के नमाज पढ़ने पर हदीस है, ऊँट पर नमाज पढ़ने की हदीस है, ये कई सारे हदीस है। लेकिन मौजू ये भी है, मौजू ये है कि कोई एक मौजू पर इख्तिलाफ है, ठीक है, उस पर बात करने का, उस पर हल निकलना चाहिए। तेरे दलाइल सामने आएंगे, मेरे दलाइल सामने आएंगे, तो पब्लिक समझ जाएगी ना इंशाअल्लाह। चलो तो बात करेगा औलिया अल्लाह पे, औलिया अल्लाह जो दुनिया से जा चुके हैं कबर। अरे वैसा नहीं चलता है रे, भाई मैं कोई मुनाजिर थोड़ी हूँ यार, अरे लोगों को पता है। हटाओ यार, मैं मुनाजरा करने आता हूँ तुमसे, मैं सिर्फ चलेंगे और ये दावे कर रहे हैं। मेरे हवाले कर दो, मेरे हवाले कर दो, मेरे हवाले कर दो, मेरे हवाले कर दो। उनके अंदर अरे उनके बस की बात नहीं है, तुम्हारे दुनिया में तो वहाँ भी पैदा नहीं हुआ जो उनके बस की उनसे बात कर सके, ठीक है। वो कह तो रहे, सुनो, वो कह तो रहे हैं कि उसूल और ज़ाब्ते से तय करके और कायदे से बात करो, उसूल से, जैसे शरीयत के उसूल है उसी हिसाब से बात करो। चलो करो। कैसे शरीयत के उसूल है? तुम कह रहे हो कि मैं मुनाजिर नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, तो तुम गिड़गिड़ा रहे हो, मैं ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ। अमन भाई जब सुनो, सहरान भाई से बात करनी है तो ज़ाब्ते से बात करो। ये क्यों कह रहे हो कि मैं ये नहीं हूँ वो नहीं हूँ, तो ये क्यों कह रहे हो? मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हारे अकीदों पे ज़र्ब लगा रहा हूँ, तुम्हारे अकीदों को गलत बता रहा हूँ, तो तुम्हें उसकी वजाहत करनी पड़ेगी ना कि हम ये अकीदे लाए कहाँ से। हाँ, तो उस पर बात करनी पड़ेगी ना। एक मिनट सुनो, एक मिनट मुझे बता दो खाली, ये अकीदे में यहाँ से लाया हूँ भाई, कुरान से लाए। सुनो तो सही, इसी अकीदे पर और इसी पर बात होगी। सहरान भाई ने कहा उसूल और ज़ाब्ते से बात होगी, मुनाजरा होगा, ठीक है। क्यों भाग रहे हो मुनाजरा से? मुनाजरा में मुनाजिर हो गया, जो मुनाजरा करोगे मेरे से। अरे क्यों नहीं होगा भैया, तुम सवाल उठा रहे हो, मुनाजरा क्यों नहीं होगा तुमसे? भाई मैं सवाल उठा सकता हूँ, तुम ये कह दो कि तुम्हारी औकात मुनाजरे की नहीं है और सवाल उठाने आ गए तुम। अरे यार तुम्हें ये वही तो बात है, तुम लोग अभी तक ये पता ही नहीं है। आज तक तुम लोगों को मिर्जा ने ऐसा गुमराह करके रखा है वहाबियों ने, खाली सवाल करते रहो। अरे हमने इजाजत दी, तुम वहाबियत के आए तो सही बात तो करे। अच्छा मेरे से सवाल करो कि मैं अल्लाह से क्यों मांगता हूँ,
पहले मैं सवाल क्यों करो सवाल करूं? पहले मैं सवाल करूंगा, पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए यार, कि मैं सामने भाई जो वाले के तुम पास कर्म जा करते रहा हो, हूँ, मैं उससे क्यों भाई बात कर रहा हूँ? भाई मैं जो तुम कर्म करते हो उस कर्म पे पूछूंगा ना कि तुम ये कर्म करते क्यों हो? कौन से कर्म करते हो? जो भी तुम कर्म करते हो, और मैं ये पूछूंगा कि तुम पूछ क्यों रहे हो फिर? मैं इसलिए तो पूछूंगा ना कि तुम्हारे तुम अरे हो भी मैं ये सही कि पूछूंगा, मैं ये खाली पूछूंगा, ढिंडोरा ढोल लेके पीट रहे हो। अरे मैं ये पूछूंगा, ये ढिंडोरा है, ढोल है, ये तुम कैसे कह सकते हो? अरे वही तो जब भी तो पूछो, अरे तुम मुझे जवाब दे दोगे, मैं कह दूंगा हाँ भाई ये तुम्हारे अरे सही यार है। तुम पूछ क्यों रहे हो पहले तो ये बताओ। पूछूंगा इसलिए क्योंकि मुझे गलत लग रहा है। गलत क्यों लग रहा है? लग रहा है इसीलिए तो एक जो इंसान जो दुनिया से चला गया है उससे मांग रहे हो तुम। हाँ तो ये तुम्हें गलत क्यों लग रहा है? ये कहाँ से लाए हो अकीदा? मैं ये तो जानना चाह रहा हूँ कि अरे अकीदा जनाब, कहाँ से आप लाए कहाँ से बुजुर्गों उठ से? के आके इसको गलत कह रहे हो? क्योंकि साहबा इकराम बुजुर्गों से नहीं मांगते थे ना, इमाम हमजा से नहीं मांगा, अबू बकर कौन उमर सी उस्मान किताब में अली लिखा है कि वो नहीं मांगते थे? झूठ बोले, बता दो। झूठ बोले तो दो बाप के। कौन सी किताब में लिखा है? भाई जो होने की दलील होती है ना होने की दलील नहीं है। कहाँ लिखा है होना होने है की ना, दलील होती है, ना अगर होने है की? एक मिनट, इसीलिए जाहिलों से ये बात कही जाती है कि मुनाजरा करो, क्योंकि जाहिलों को कुछ समझता है नहीं। अब तुमने ये मुंह उठा के ये बात तो कह दी, होने की दलील होती तो है, ना फिर होने तुम की ये दलील नहीं बताओ, होती। नहीं तुम ये बताओ अरे कि साहबा खामोश इकराम रहो ने पहले, पैंट शर्ट नहीं पहना, अरे इसकी दलील दो। खामोश रहो पहले। पैंट शर्ट नहीं पहना, अभी जनाजा निकलेगा तुम्हारा यहाँ पर। पहले ये बताओ कि जो काम होने की होती है उसको उसकी दलील होती नहीं है, और जो तुमने काम अभी ना हो यहाँ तुम्हारे उसकी उसी कोई का दलील जवाब दे नहीं रहा हूँ, होती। ये बताओ पहले कहाँ लिखा है? तुम्हारे उसी का जवाब दे रहा हूँ, तुम्हारे उसूल का। ये बताओ साहबा इकराम ने पैंट शर्ट नहीं पहना, इसकी दलील दो। अच्छा, साहबा इकराम ने पैंट शर्ट नहीं पहना, इसकी दलील दो? तो यानी तुम मान रहे हो कि उन्होंने दलील पैंट शर्ट पहना था? हम थोड़ी मान रहे हैं, तुम दो तो दलील। तुम पूछ क्यों रहे हो जब मान नहीं तुमने रहे हो? कहा ना नहीं होने की दलील। अरे मैंने कहा कि सहाबा इकराम पैंट शर्ट नहीं पहनते थे, तुम कह रहे हो कि वो तो दलील दो, यानी तुम मान रहे हो तो कि वो उसकी दलील पहनते दो थे। भाई, उसकी दलील दो, दलील अच्छा, मांगिए ना। अच्छा पहनते थे? तुम मेरे से कह रहे हो कि साहबा इकराम ने मोटरसाइकिल नहीं चलाई, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हो तुम ये चीज? क्योंकि नहीं चलाई, अरे वो उन्होंने मेरा पता दावा चला, है। अरे अमन भाई एक वो मिनट, पता चला जब दावा है, एक मिनट, एक मिनट, बताओ सुनो, मोटरसाइकिल नहीं चलाई, बताओ। अच्छा चलाई थी? तुम बताओगे? अरे तुम तो पहले इसका इकरार करो, चलाई थी। पहले ये बताओ कि पैंट शर्ट पहना, पैंट शर्ट की पहले दलील तुम दो। तो बताओ, ये जो तुम पूछ रहे हो इसके ऊपर तुम्हारा क्या अकीदा है? उन्होंने पहनी पैंट अरे शर्ट? तुम ये बताओ, तुमने अभी मैंने क्या कही कि साहबा इकराम कब्रों से नहीं मांगते थे, तो मैं तुमने यार क्या कही? हाँ तो नहीं मैं होने यही की तो दलील दो। सुनो सुनो, मैं यही तो पूछूंगा, तुम्हारे पास क्या दलील है नहीं मानते यार थे? तुम तो तुम्हारे खुद के उसूल में फंसे जा रहे हो यार, कैसे क्या फंस है जा रहे यार? हैं भैया? यानी इतने इधर बड़े तो जाहिल मैं- है, या यानी तो मेरे सहाबा से- के बारे में कह रहे हैं पैंट शर्ट पहनते थे, दलील दो। यानी इनका मानना है कि वो पहनते थे। नाज़ अस्तगफिरुल्लाह। तो यार वो कब्रों से नहीं मांगते थे, इसकी अरे दलील तो क्यों पूछ इसकी रहे हो? दलील कौन देगा? हम तो कह रहे हैं मांगते थे, आप ये बताओ तो कि फिर वो दलील नहीं दो। मांगते थे, इसकी दलील कौन देगा? ये दलील दो। हाँ नहीं मांगते थे, तुम ये कह रहे हो नहीं मांगते थे, अभी तुमने कहा नहीं मांगते थे, इसकी फिर वही दलील क्या बात, है? मतलब वही सवाल तुम पे खड़ा कर रहा हूँ कि तुम तो- ये बताओ कि साहबा इकराम पैंट शर्ट नहीं पहनते थे, इसकी दलील दो। अच्छा तुम मानते तुम हो वो माफी पहनते मांगे थे? तो अरे यार देखो अमन देखो भाइयों, ये होते हैं इतने बड़े जाहिल। ये होता है। ये मुझसे दलील मांग रहे हैं कि वो पैंट शर्ट नहीं पहनते थे। अपने ही उसूलों से फिसल रहे हैं। पहले मैं जनाजा तो चूतिया निकाल हो दूं गया, सही तरीके। तेहरान तो अकलमंद हो गया, तेहरान सामने तो हजरात, अकलमंद हो आप गया। अच्छी तरीके से जानते जवाब हो। नहीं, ये तो चूतिए हो गए। सामने इस साले को कुछ आधा जा रहे नहीं तो फालतू का टाइम पास कर रहा है ये। तू भाई लोग तेहरान अच्छी तरीके से ये बात जानते हैं कि ये लोग आगे सवाल करते हैं। नहीं है। अमन भाई मैंने शुरुआत से लेकर के अभी तक रिकॉर्डिंग की है और मुश्किल से मुश्किल 4 मिनट दीजिए, उसके बाद उसका फोन काट कर देते हैं हम लोग। रुको तो सही, पहले मैं इनसे ये पूछ लूं कि इनके पास कौन सी ऐसी दलील है कि ये इतना खुल के दावा कर रहे हैं कि सहाबा इकराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मांगते थे। चले बताएं, दलील पेश करें। नहीं मांगने की होती है दलील। अभी तो भाई तुम या एक तो मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैं ये एक दलील मिनट। ले दूंगा। सुनो देखो, हम ये कह रहे हैं, तुम कह रहे हो कि सहाबा इकराम नहीं मांगते थे, ठीक है? तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इसके ऊपर क्या दलील? अरे होने की दलील होती है मेरे भाई, होने की। होने की दलील हाँ, होती है है तुम और लोगों का ना होने दिमाग। की नहीं होती है। कोई काम उस जमाने में होता ही नहीं था। अरे और सुनो तुम कह तो रहे हो सही। नहीं। अरे सुनो, अल्लाह तो सुनो तो कैसी सही। बातें करते हो यार अरे तुम लोग सुनो यार। अरे सुनो तो सही। अच्छा, होने की दलील होती है, ना होने की नहीं होती है, ये कहाँ लिखा है? यार तो कोई काम होएगा ही नहीं। मुझे बताओ, पैंट शर्ट पहनी, तुमने क्या पैंट शर्ट नहीं पहनी? अब तुम इसकी दलील दो फिर मुझे, किसकी? पैंट शर्ट नहीं पहनी। अरे तुम ये कहो तो सही कि वो पहनते थे, तभी नहीं तो मैं नहीं दलील होने की दूंगा। दलील तुमने कही ना कि नहीं होने की अरे दलील। देखो, जैसे सुनो 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 सुनो, तुमने ये तुम्हारे दावा उसूल है किया, ना।
सुनो, तुमने ये दावा तुम्हारा किया, उसूल है ना, अरे तुम उसूल में खामोश फंसे तो हो। रहो, अभी खामोश तो रहो। तुमने ये दावा किया कि वो नहीं मांगते थे, तुमने हुक्म लगा दिया नहीं मांगते थे, तो अब मैं तुमसे दलील मांग रहा हूँ कि भैया नहीं मांगते थे तो दलील दो। दलील यही है ना कि कोई हदीसों में नहीं आई है। अच्छा, हदीसें तुम हदीसों में बताओ अगर आई नहीं, है तो। अच्छा हदीसों में नहीं आई है, कौन सी हदीसों में नहीं आई है? कोई सी भी हदीसों में नहीं है। किताब दिखा दो कि इमाम हमजा से किसी ने मदद मांगी हो तो। अच्छा, इमाम हमजा से किसी ने मदद मांगी हो, ये मैं दिखाऊं? आपको कैसे पता कि नहीं मांगी है? ठीक है, हदीसों में नहीं है, किताबों में। कौन सी किताब में, हदीसों में नहीं है? कोई सी भी अच्छा किताब में अच्छा, नहीं है। इमाम हमजा से मदद मांगना जरूरी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? नहीं, नबी मुझे सल्लल्लाहु अलैहि बताओ, वसल्लम मैं से? बात बुजुर्गों की हो रही है। अच्छा, अभी नबी बुजुर्गों सल्लल्लाहु पे अलैहि वसल्लम टॉपिक पर चल रहा है इकरार ना। है तुम्हारा कि मांगा है? बात अभी अभी छोड़ दो उसको, टॉपिक को। वो बहुत हो गया हमारे डिस्कस। अभी बुजुर्गों पे डिस्कस होगी बात। अरे ठीक है, बुजुर्गों पे सुनो तो करूंगा सही। मैं। अच्छा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मान गए कि तो वो मांगते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बात की बात है। अभी मैं से? अरे बुजुर्गों की बात बात की लेके बात चलाऊंगा। काहे आप है नबी यार? अलैहिस्सलाम पे को जा रहे हो। ये देखो भागे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, नहीं, बात तो तुम रहे हो, बात ये बुजुर्गों की देखो लेके नबी चलाऊंगा सल्लल्लाहु मैं अलैहि शुरू वसल्म से से। भागे, मैंने बुजुर्गों से लेके ये चलाऊंगा देखो शुरू नबी से। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भागे। बुजुर्गों से मांग रहे हो, मुझे ये क्यों मांगते हो भाई? बताओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना या सहाबा किराम, इस पर तुम मान गए कि वो ये मांगते थे? सामाइन हजरात, ये मैं बुजुर्गों से मांगता हूँ, बुजुर्गों के मांगने के ऊपर बात कर रहा हूँ। ये ले गए मैं तो नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहिस्सलाम अलैहि से। वसल्लम पर बात कर रहा हूँ। अच्छा चलो, ये मैं साहब बुजुर्गों पे बात करूंगा। सामाइन, सुनो, ये मैं कैसी बुजुर्ग, बातें करते सुनो सुनो हैं। सुनो, मैं बुजुर्गों पर बात करूंगा। पहले ये बताओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इकरार है तुम्हारा पहले कि मांगते बुजुर्गों थे? पे बात होगी, मैंने बुजुर्गों पे ही सवाल खड़ा करा है। पहले हुज्जत नबी हैं या बुजुर्ग हैं? पहले तुम बुजुर्गों से मांगते हो, तुम्हारे लिए अरे हम बुजुर्ग तो हुज्जत है। मांगते हैं भैया, हम दलील देंगे। पहले हाँ, तो नबी बस का तो बुजुर्गों की दलील दे दो मुझे, बस बात हुजूर सल्लल्लाहु खत्म। अलैहि वसल्लम पर मान गए तुम? वो बाद में होगी बात, अभी अरे बुजुर्गों पे आओ। बाद में क्यों होगी, पहले अभी होगी। पहले तुम इसका इकरार नहीं, करो। मैंने जो मेरा सवाल था उस पर कायम अरे रहो बस। मेरा अच्छा, तुम्हारे सवाल से काम चलेगा मुझे यहाँ ये पर ही? समझ आना है कि इमाम हमजा से मदद मांगी, अबू बकर से बाद वफात मदद पहले मांगी। सुनो, पहले सुनो, उस पर भी बात होगी। पहले ये बताओ कि नहीं नहीं नहीं, नबी उसी पे सल्लल्लाहु अलैहि बात वसल्लम होगी पर बस। इकरार है तुम्हारा? या तो ये कहो कि हम बुजुर्गों से पहले ऐसे अरे ही मांगते हैं उस अपनी पर भी मर्जी बात, से। सुनो सुनो, उस पर भी बात करूंगा। बस ये उसी पे बताओ, अगर होगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि बस वसल्लम, इसी पर ही होगी। यानी अमन कि भाई सामीन हजरात, यानी ये मान गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगते थे। चलिए ठीक है, वो अच्छी बात है। बात होगी। अमन अभी भाई कॉल आपको कट बात करें, करनी अमन है। भाई कॉल कट करें इस 90 का, कॉल हाँ, कट करें 90 का। जाहिल है सामीन हजरात, ये देखो देखिए सामाइन इतने बड़े सहरान जाहिल कितना हैं डर ये गया है। लोग, इतने इतना बड़े बड़ा जाहिल हैं मुनाफिर ये लोग आज एक कि अभी बच्चे नबी से डर सल्लल्लाहु गया, अलैहि वसल्लम बच्चे पर से। ये देखो इकरार कर गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगते थे। ये देखो इकरार कर गया। अभी इतने तो बड़े आज ही जाहिल कर हैं ये दिया लोग। अमन भाई। फोन ये कट इनकी करें अमन जहालत भाई, आप लोग फोन समझ नहीं नहीं सकते नहीं हैं। नहीं, भाग। सुनो सुनो, आप तस्लीम करो। अरे कट जनाब करें। अमन अली आप कादरी, तस्लीम करो। भाई अरे अमन अली कादरी कभी कहीं कहो कि कभी हमारे किसी से अकीदे भागता ही फ्रॉड नहीं हैं। है, क्योंकि अमन अली कादरी हमें अल्हम्दुलिल्लाह हक पर है। नहीं, कहो कि हमने ये बुजुर्गों से जो मांगने के अकीदे बना रखे हैं, ये फ्रॉड हैं। अच्छा फ्रॉड है, वो तो हम ही बाद में बात जायज करेंगे। है, पहले ये जायज बताओ, है, दुरुस्त है। रुको साहिल भाई इसी पे रुको, बात होगी। अरे इनका दम निकाल दें अभी, रुको। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तुम्हारा इकरार है, चलो हम मान गए, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अभी सुनो नबी सुनो, अलैहिस्सलाम पे तो बाद में बात होगी मेरे भाई। अच्छा अभी पहले नबी बुजुर्गों सल्लल्लाहु अलैहि का वसल्लम हुज्जत हैं या बुजुर्ग हुज्जत हैं? अभी अभी तुम्हारे लिए बुजुर्ग अच्छा था ना, लड़ाई तो सारी बुजुर्गों पे चल रही है मैंने ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे चल रही है। नहीं, मैंने बुजुर्गों की बात करी है। अच्छा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मान गए तुम? मेरा शुरू से रिकॉर्डिंग सुन लो, बुजुर्गों पे कहा है अच्छा, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि कि वसल्लम से मान बुजुर्गों गए, से मैंने तो कहीं कहा ही नहीं कि बुजुर्गों पर बात करेंगे। किसी भाई टॉपिक पे मेरा बात ही नहीं चल सवाल तो रही है। मैं तुम तो सवाल आके मैंने ये करा कह है ना रहे हो, आपसे। सुनो, तुम तो आके ये कह रहे हो मुझे सवाल करना है सवाली की तरह। जब सवाली की तरह तुमने सवाल हाँ, किया है, सवाल ही हूँ मैं तो, बेसिक सवाल हाँ ही हूँ मैं। तो जवाब दो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मान गए तुम? अरे अभी नबी अलैहिस्सलाम पे बाद में बात होगी ना मेरे भाई। हैं? अभी तो आपसे क्यों सिर्फ होगी बात बाद में होगी भैया? बुजुर्गों से जब एक मांगने मिनट, का नबी अकीदा सल्लल्लाहु जो अलैहि तुम वसल्लम लाए से हो बाद ना, में क्यों होगी? क्योंकि पहले बुजुर्गों से जब लाए हो ना पहले अकीदा, बुजुर्ग हैं। तो मुझे ये समझाओ एक कि मिनट, मांगते क्यों हो। सुनो सुनो, पहले बुजुर्ग हैं। हाँ पहले कौन तुम्हारे है? लिए बुजुर्ग है ना, तुम्हारे पास में जो बुजुर्ग अल्लाह रहते हैं अकबर, अल्लाह अकबर। इतने बड़े उनसे बात कज़्ज़ाब होते उनसे। हैं, अपना अकीदा बचाने के लिए झूठ भी बोल देते हैं। हमने कब कहा हमारे अरे लिए यार, पहले बुजुर्ग हैं? तुम्हारे लिए पहले नहीं है कहाँ क्या लिखा है याली हमारी मदद किताब या में? गौसल कहाँ मदद लिखा या है रसूलुल्लाह भैया मदद, तो हमारी पुकारते ही किताब? हो तुम लोग। रुको, अभी तुमने यहाँ झूठ बोला है, पहले इसका जवाब दो। हमने कहाँ लिखा है कि हाँ? हमारे लिए पहले बुजुर्ग हैं? क्या ख्वाजा मेरी मदद करो, ये पहले यही होता है। अल्लाह अकबर मादल्ला, इतने बड़े जाहिल झूठे लोग हैं, कह रहे हैं हमारे लिए पहले बुजुर्ग। क्यों कहाँ पुकारते लिखा हो? है? जब नबी अलैहिस्सलाम से मदद मांगते हो तो बुजुर्गों को क्यों पुकारते हो? ये बताओ, हमने ये कहाँ लिखा है कि हमारे लिए पहले बुजुर्ग हैं? नबी अलैहिस्सलाम है ना, नबी अलैहिस्सलाम है नबी हमारे अलैहिस्सलाम लिए? पहले है ना। तो ये बताओ कि नबी अलैहिस्सलाम अच्छा, पहले तुमने है ना। झूठ काहे बोला?
अच्छा ये पहले है ना, तो फिर नबी अलैहिस्सलाम को अरे तुमने झूठ पुकारने क्यों की बोला? बजाय तुम पहले ये बुजुर्गों को बताओ, क्यों पुकारते सुनो हो? सुनो, पहले तुमने झूठ क्यों बोला ये अरे बता जब दो। तुम नबी अलैहिस्सलाम को अफजल मानते हो तो फिर बुजुर्गों को क्यों पुकारते हो? अच्छा, यानी कि अगर तुम अल्लाह को अफजल मानोगे तो अपने अम्मा बाप को नहीं पुकारोगे, अगर अम्मा बाप को पुकार लिया तो फिर अल्लाह को वही पहले बात नहीं आ गई मानोगे। ना, अब्बा अब्बा, फिर वही अब लंबी सुनो बहस पहले, चलेगी। अब ये जवाब बताओ, नहीं है तो सीधा ये सा कह दो, नहीं है सुनो जवाब, सुनो खत्म हो जाएगी जवाब, बात। अरे ये सुनो पहले, हमने कौन सी किताब में नहीं लिखा नहीं है कि अमन पहले भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि मुझे वसल्लम। मुझे देखो, बहसें खूब हो गई, सालों से नहीं बहसें नहीं चल रही नहीं, हैं। बहसे नहीं, अभी जो आज तुमने तक ये कोई झूठ बोला बाइक है सामने अल्लाह, नजरात, बड़ा तुमने तुम्हारा बड़े कितना से बड़ा बड़ा झूठ बोला मुनाजिर, है। मैंने सब मुनाजिरे देख लिए, सुनो सब सुनो मुनाजिरे पहले, देख तुमने लिए, मुनाजरे देख कोई लिए, आज तुम्हारी तक ये अकल पे साबित पड़े नहीं हैं कर पाया पत्थर। कि अल्लाह ने बुजुर्ग से कुरान में मानते क्यों है। फरमाया है खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, हमने इनके दिलों पर मोहर लगा दी। तुम क्या देखोगे? हाँ वो तुम्हारे तुम्हारे आंखों लग पर पर्दे चुकी डाल है। देंगे, तुम क्या देखोगे? अच्छा पर्दे हमारे क्यों? जी अच्छा अब अल्लाह सुनो के पहले, माना गुनाह हो गया क्या? अभी ये बताओ, तुमने ये कैसे कह नहीं दिया कि हमारे सुनो लिए सुनो पहले सुनो पहले सुनो, बुजुर्ग अरे हैं? तुम्हारे अरे इसी बात रुको पे आ जाओ, यार, रुको, अभी तुम्हें रुको यहाँ से अरे जाने नहीं यार देंगे। मेरे प्यारे मेरे अमन प्यारे, कादरी, मेरे सुनो सुनो, मेरे प्यारे नहीं हो, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुमने ये झूठ कैसे बोला कि पहले हमारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बुजुर्ग है? ये कहाँ से बोला हाँ तुमने? क्योंकि हाँ तो फिर आप ये इनको क्यों पुकारते हो? अच्छा, अगर किसी ने किसी को पुकार लिया तो वो पहले हो जाता है? क्यों पुकारेगा? जब नबी अलैहिस्सलाम सबसे अफजल है तो सबसे अफजल को पुकारो। अच्छा, यानी सहाबा जब नबी को पुकारते थे तो अल्लाह से पहले उनके लिए नबी हो जाते थे? अब यार ये बहस क्यों कर रहे हो? ये अभी बहस तुम्हारी क्यों? तुमने देखें कहा सामने कि नजर हमारी आ कितनी अफजल मक्कारी है, ये देखें सामने नजर आ। आप देखो मक्कारी तुम्हारी है। ये तो इनकी औकात अच्छा होती किसने है। पुकारा यार रसूलुल्लाह मदद? ये ऐसे मक्कारी, आओगे तुम, ऐसे नहीं आओगे ये यार रसूलुल्लाह मक्कारी नहीं आओगे तुम। देख रहे हैं? तुम बुजुर्गों ये को जवाब आएगा कॉल नहीं रिकॉर्डिंग पे तुमसे। बात करने के लिए कह रहे थे, ये कॉल रिकॉर्डिंग पे बात साइड में रिकॉर्ड कर रहे हो। तो क्या हो गया? कितना जलील क्या हो गया? सुनो सुनो, अब सुनो, जलील अब सुनो, अरे अमन अभी अली तुमने कादरी कहा, साहब, सुनो सुनो, अभी तुमने कहा, अमन सुनो भाई, सुनो, अमन भाई आपको क्या कह रहे हैं? अमन अली कादरी साहब सुनो तो सही। हाँ हाँ क्या हो गया? हमारे लिए तो साहब है तुम। ये बात करेंगे जिन्हें मुनाजरे के उसूल नहीं पता, तरीके नहीं पता, खाली सवाल लेके आए, अपने सवाल में फंसे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगते थे तो क्या उन्होंने अल्लाह से पहले नबी को कर लिया? भागा 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 भागा। इतना बड़ा जाहिल है, इतना बड़ा। अरे साहिल भाई, इसको तो मैं बहुत बुरी तरीके से धोता हूँ जब भी ये मेरे सामने था। तो जैसा कि सुना हज़रत आपने, और ये बात हकीकत है कि कोई भी वहाबी देवबंदी अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हनफी बरेलवियों के सामने टिक ही नहीं सकता, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह हक पर है और ना आज तक कोई टिक पाया है, इनका बड़ा से बड़ा और छोटे से छोटा कोई भी। तो जैसा कि आपने सुना, उसूल बना के चल रहे थे कि अगर किसी शख्स ने बुज़ुर्गों को पुकार लिया तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्हें ऊंचा कर दिया। ये तो वही बात हो गई इन जाहिलों की कि अगर किसी ने अपनी माँ को पुकार लिया तो उन्होंने अपने बाप से उन्हें बड़ा कर दिया, कि किसी ने अपने बाप को ना पुकार करके माँ को पुकार लिया। या फिर कि सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने अगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार लिया अल्लाह के होते हुए, तो उन्होंने क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से बड़ा कर दिया? और वो तो अक्सर पुकारा करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हर बार पुकारा करते थे, दिन रात का उनका यही मामूल था। तब आप खुद समझ सकते हैं। और इस रिकॉर्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।